We only know so much of what we are doing online, but there is so much more. ये जो थर्ड पार्टी बिजनेस को ये हमारा डेटा शेयर करते हैं, हम उसे ऑफ कर सकते हैं. If anything is too good to believe, don't believe it. Individual movements and all of that have become very, very integral. More steps we take to protect ourselves, the better it will be for all of us. Hi everyone. Hi. So we're going to talk about the awareness of data being sold without our knowledge. A lot of times we feel that we are safe, but actually our data is not safe, and it is usually sold without our consent. So our experts will cover, in fact, share a lot of insights behind what goes wrong without our knowledge with the data. Correct. And this is really important topic for all of us to understand who are using so many social media platforms. We're out there sharing whatever we are doing every day. We are checking in wherever we go, we check in. Wherever we are flying, we are putting right out there. And with each platform that we use, there is a part where you can actually go and safeguard your data. And that consent that you give when you hota hai na, jab terms and condition aata hai, and we just say, okay, right, let's just accept it and go to the next step and sign up and complete the sign up process. So that part, even if we are doing on a daily basis, we can actually go back into the phone and change settings for each app. And that's really important. And all these experts today are going to share about how you can do all these things, how you can manage your data, how you can safeguard yourself, and a lot of other things. What all laws can actually protect you from anything that can go wrong with you, or even the smallest of the scam that you think, what happens if 1 rupee gets deducted from my account, वो भी एक बहुत बड़ा scam में convert होता है. So how to safeguard, that's a very important topic to discuss. Over to you, Sonakshi. Today we have with us Ms. Astha Kapoor, who is the co-founder of Aapti Institute. Astha works on questions of the data economy and is currently leading Aapti's work on data rights, stewardship and privacy. Welcome, Astha. We also have Mr. Rakshit Tandon back on this campaign. He was here with us on one of the earlier episodes where he gave out a lot of information about how we are to protect ourselves on the internet. He is a cyber safety expert, a consultant for IAMAI, cybersecurity awareness and investigations expert. We're very glad to have you back on the show, sir. Can't wait to see what you have to say today. And lastly, we also have Captain Vineet Kumar, who is the president of Cyber Peace Foundation. Looking forward to your insights as well. Vineet ji, I'd like to start with you. Today everyone is on the internet, and a lot of their personal data is out there for these companies and agencies and platforms that they're on to access. How do you think a person can safeguard themselves and their private space and their private lives, owing to the fact that एक जो वो डायलॉग आता है कि you agree to the terms and conditions, और हम बिना देखे उसको agree करके accept कर देते हैं और साइट पे आ जाते हैं, without knowing what kind of personal information these platforms have access to really. How do you think we can safeguard ourselves from that? The answer is simple. In fact, and let me also start with the saying, in fact, COVID-19, the entire COVID-19 has changed the way we think and we used to act earlier. And work from home is the new norm. In fact, working from home is the new norm. In fact, online schooling is the new norm. Everything has gone on the e-mode. So there are certain issues, definitely, yes. There are issues. There are many sites, social media giants also collecting lot of information without the user's consent. ये एक बहुत बड़ा issue है, और यही हम लोग भी अभी तक देख रहे हैं और लोगों के साथ काम भी कर रहे हैं और पता चल रहा है. लेकिन at this moment इंडिया में अभी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया नहीं है. जैसे ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, आई एम श्योर कि बहुत चीजें कंट्रोल होंगी, रेगुलेट होंगी. लेकिन एट दिस मोमेंट यूजर जो अपने एंड से है, यूजर को साइबर हाइजीन फॉलो करने की जरूरत है. बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगेन मैं कोविड-19 का ये भी मेंशन करूंगी कि अटैक्स हमने भी देखा है कि साइबर क्राइम से रिलेटेड अटैक जो है वो इस समय बहुत बढ़े हैं, बहुत ही ज्यादा बढ़े हैं. बल्कि मैं कहूंगा कि पीक पे मैं देखा हूँ अटैक्स. हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं इस तरह के अटैक्स को, तो ये बढ़े हैं. तो इसमें क्या है कि बेसिक साइबर हाइजीन जो लोगों को फॉलो करना चाहिए वो ये सबसे पहला इज, इफ एनीथिंग इज टू गुड टू बिलीव, डोंट बिलीव इट.
ये सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि वो कुछ ऐसा है कि बहुत लुभावने ऑफर्स आपके सामने आ जाए कि आईफोन 12 प्रो 4,999 में, और लोग उसको देख के टेम्प्ट हो गए, क्लिक किया वहां पे। तो ये सब चीजें, उनसे बचने की जरूरत है, और उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इस तरह के ऑफर्स नहीं होते, और ये फंसाने का तरीका है। सिंपल चीज, जैसे कि हम सॉन्ग्स की बात करें, एक साइट हुआ करता था songs.pk, उससे लोग बॉलीवुड के सॉन्ग्स फ्री में डाउनलोड करते हैं। तो एक चीज लोगों को ये भी जानने की जरूरत है कि देयर आर नो फ्री लंचेस, कोई भी चीज फ्री नहीं है। अगर वो सॉन्ग अगर फ्री में मिल रहा है तो साथ में उसके साथ मैलवेयर भी आ रहा है, साथ में उसके साथ वायरस भी आ रहा है, जो आपके फोन में इंस्टॉल होगा और आपके फोन को स्पाई फोन बना देगा। आपके फोन का कैमरा ऑन हो जाएगा, आपके फोन का माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा, और आपके सारे डेटा, जो भी डेटा है, चाहे पर्सनल है, फाइनेंशियल है, शॉपिंग का डेटा है, हर चीज कलेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे ऐसे चीजों को है जो लोगों को चाहिए कि वो उसको नहीं उसमें पढ़े। सिंपल चीज कुछ अगर मैं बात करूं, 2 स्टेप वेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि लोगों को अपने ईमेल में, अगर वो अमेजोन या किसी तरह की साइट पे शॉपिंग करते हैं तो उसमें उसको लगाना चाहिए। साथ ही साथ कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, चाहे वो बैंक पे जा रहे हो, किसी तरह के बैंक, हर बैंक आजकल, मेजॉरिटी ऑफ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये फीचर 2 स्टेप वेरिफिकेशन देता है, तो उसको इनेबल कर लेना चाहिए। आपका मोबाइल फोन इज वेरी पर्सनल टुडे, मोबाइल फोन बहुत ही पर्सनल है। आप, मैं तो कहूंगा कि जैसे टूथब्रश बहुत पर्सनल होता है, आप टूथब्रश को किसी को शेयर नहीं करते हैं, सो अवॉइड शेयरिंग मोबाइल फोन एंड द डेटा विथ एनीवन वहां पे। तो मोबाइल फोन से जुड़े हुए जो भी चीज हैं, चाहे उसमें कोई भी डेटा है, उसको आपको सिक्योर करने की जरूरत है, और उसके लिए आपको इंटरनेट सिक्योरिटी एप्लीकेशन की जरूरत है, एंटीवायरस की जरूरत है, आपको फायरवॉल्स की जरूरत है, जो कि आपको डिप्लॉय करना चाहिए। तो ये कुछ सिक्योरिटी टिप्स हैं जो आई वुड सजेस्ट कि साइबर हाइजीन की अगर हम बात करें तो ये सब चंद कुछ टिप्स को फॉलो करना चाहिए। अपने ऐप्स को रेगुलरली अपडेट करें, जो भी आपके पास एप्लीकेशन है उसको अप टू डेट उसको रखें। ऐसा नहीं कि आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल तो कर लिया लेकिन उसके बाद आपने उसको एक बार अपडेट तक नहीं किया। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि आपको रेगुलरली करते रहने चाहिए, और जितने भी चीजें एप्लीकेशन प्रोसेसेस उसको अप टू डेट रखना चाहिए। तो ये some few tips आजकल तो ऐसा हो गया कि आप अगर दोस्तों में बैठकर बात भी कर रहे हो किसी चीज के बारे में तो उसी चीज के एड्स आने लग जाते हैं, मतलब आपके तो इससे कैसे फोन में कोई भूत छुपा हुआ है जो सुन रहा है हमारी बातें, और जो हम देखना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं उसके एड्स आने लग जाते हैं। सो इट्स एक्चुअली क्वाइट स्कैरी। रक्षित जी, मैं आपको पूछना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे विनीत जी ने कहा कि अभी तक लॉ आया नहीं है डेटा प्रोटेक्शन का। So since there are such few laws governing how social media companies, collect our data and use it, to their advantage, can you just tell us a little bit more about this? सोनाक्षी जी, अभी जैसे विनीत जी ने बताया हमको कि हमारा डेटा प्रोटेक्शन बिल इज ऑन द टेबल, इट्स इन द पार्लियामेंट, वो आया नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, जीडीपीआर जो यूरोपियन कमीशन का जब बिल आया था तो उसके बाद आपने सडनली देखा ये जितने सॉफ्टवेयर सोशल मीडिया जाइंट्स हैं इनकी परमिशंस में बहुत सारे चेंजेस और बदलाव आए। सबसे पहला बदलाव ये आया कि आप अपना खाता हटा सकते हैं, दूसरा बदलाव ये आया कि आप अपना खुद का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं, और तीसरा बदलाव ये आया इनकी सेटिंग्स में कि आप अपनी एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ कर सकते हैं। जो आपने अभी अभी सवाल कहा कि हम बात कर रहे हैं दोस्तों के बीच में बैठ के एक प्रोडक्ट की और फिर वही विज्ञापन आने लगा, दैट एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट्स पॉपिंग अप। जब आप एक ऐप इंस्टॉल करते हैं तो बड़ी प्यार और खूबसूरती से आपसे कुछ परमिशंस मांगता है, बड़े प्यार से वो कहता है मैं आपके कॉन्टेक्ट्स ले लूं, मैं आपका कैमरा ले लूं, एसएमएस ले लूं, लोकेशन ले लूं, और हम बड़े प्यार से उसको अलाउ 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 कर देते हैं। अब आपने अपने एक ऐप को माइक्रोफोन एक्सेस दे दिया, यानी कि वो कभी भी 24 घंटे बैकएंड में माइक्रोफोन सुन रहा है, कीवर्ड सुन रहा है। अब मैं अपनी वाइफ से उस दिन बात कर रहा हूं कि दिवाली पे इस बार पेंट कराएंगे, और 2 मिनट बाद मुझे सिर्फ पेंट और एशियन पेंट्स के विज्ञापन दिखाई देने लगते हैं। यहां तक कि मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी फोन कॉल को भी सुना गया। एक मेरे पास फोन आया कि आप लोन लेंगे, पर्सनल लोन। मैंने नहीं साहब, थैंक यू सो मच, मुझे पर्सनल लोन नहीं चाहिए। और थोड़ी देर बाद एक ऑटोमेटेड कॉल आ गई किसी bazaar.com से कि ये लीजिए साहब, इतने तरीके के लोन्स हैं। तो आज ये जीडीपीआर के आने के बाद इतनी तो सहूलियत हमें मिली है कि एज अ यूजर, जो कि हमें मालूम नहीं होता है, लेकिन एज अ यूजर हम अपनी सेटिंग्स में जाके ये जो थर्ड पार्टी बिजनेस को ये हमारा डेटा शेयर करते हैं, हम उसे ऑफ कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे फेसबुक की सेटिंग्स में जाएं, मैनेज ऑफ एक्टिविटी में जाएं,
और आप अपनी एक्टिविटीज एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज ऑफ कर दीजिए। एक लेमैन के लिए क्या जरूरी है कि आज एंड्रॉइड और एप्पल दोनों के ऊपर हम अपने एप्स जो इंस्टॉल करते हैं उनकी परमिशंस रिव्यू कर सकते हैं। मैं 4 महीने से लॉकडाउन में हूं और एक आईटी कंसल्टेंट हूं, तो मेरा तो बाहर निकलना बनता ही नहीं है, सारा काम ऑनलाइन करता हूं। तो जो मैंने इतने सारे एप्स ऑन कर रखे थे, जेट एयरवेज, विस्टारा, इंडिगो, और मेरे पास ओला था, उबर था, अब मैं उनको आज की तारीख में मेरी कोई मूवमेंट नहीं है, तो मैं अननेसेसरी उसे लोकेशन क्यों दूं? तो जब मुझे इस्तेमाल करना है तब दूं। तो एक ऑप्शन आता है हमारे फोन्स में, व्हेनेवर इन यूज, तो आप परमिशंस को अपने हिसाब से कंट्रोल करिए। माइक्रोफोन, कैमरा, एसएमएस और लोकेशन, ये 4 बहुत सेंसिटिव डेटा होते हैं। आज ही का अगर हम टाइम्स ऑफ इंडिया रेफर करें तो आज एक न्यूज है, और शायद विनीत जी चूंकि पॉलिसी में हमारा साइबर पीस फाउंडेशन, हम दोनों एक ही फाउंडेशन में हैं, तो हम लोगों का ये साइबर पीस जो है ये बहुत एक्टिवली इन चीजों को गवर्न करता है, गवर्नमेंट के साथ लाइजनिंग करता है। आज की अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो ये खबर भी है कि भारत सरकार एक कमिटी बना रही है और एक स्पेशल पॉलिसी बना रही है फॉर प्री बर्निंग एंड प्री लोडिंग ऑफ मोबाइल एप्लीकेशंस ऑन फोन्स, कि ये लोग किस बेसिस पे हमसे डेटा लेते हैं, वो डेटा जरूरी है देना कि नहीं। और उसी के नतीजे में हमने देखा भी था कि सरकार ने अभी 200 एप्लीकेशंस को बैन किया जो चाइनीज ओरिजिन के थे। तो एक्टिविटी है, लेकिन हाँ, एक यूजर को भी अलर्ट रहना चाहिए कि मैं रिव्यू करता रहूं बार बार। मैंने खोला अपना सेटिंग्स और फालतू परमिशंस ऑफ कर दी, और ये जो सेंसिटिव परमिशंस हैं ये तो हमें देनी नहीं चाहिए। एंड यस, as soon as the data protection bill comes out of the parliament, I think बहुत तेजी से बदलाव आएगा। और ये जो हमारी डेटा माइनिंग कर रहे हैं परमिशंस के नाम पे और एप्स के नाम पे, हमें पता भी नहीं चलता है। और फिर सबसे बड़ा शॉक कब लगता है एक यूजर को, जब वो अगले दिन अखबार में पढ़ता है कि फलाने ऐप का डेटा ब्रीच हो गया। अब वो डेटा डार्क वेब में और पब्लिकली पड़ा हुआ है, यानी कि मैंने एक ऐप को ट्रस्ट किया। 2019 की घटना है, मई 2019 में मैंने एक ऐप डाउनलोड किया था और 370 मिलियन यूजर्स का डेटा ब्रीच हो गया, यानी कि मेरे नाम, ईमेल एड्रेसेस, पासवर्ड सब चले गए। तो इसलिए मैं ये भी एक साइबर हाइजीन में ऐड करके बताता हूं कि हमें एक मिनट, एज अ लेमैन, एक मिनट, आई वांट टू इंटरप्ट यू, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे सूझा। एज अ लेमैन कोई सोच रहा होगा कि मैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, ये लोग मेरे नाम, ईमेल एड्रेस का क्या करेंगे? तो आप ये भी समझा दीजिए कि अगर कोई ऐसा सोचता है तो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस? सोनाक्षी जी, कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि जब हमारे पास एक कॉल आता है डेटा ब्रीच होने के बाद कि मिस्टर टंडन, बोले हाँ साहब, आपने अभी अभी XYZ से शॉपिंग करी थी? मैंने हाँ साहब। लाल कलर की शर्ट? बोले हाँ साहब। एक्स्ट्रा लार्ज साइज? बोले हाँ साहब। ICICI बैंक से पेमेंट किया था 470 का? मैंने हाँ। मुबारक हो, आपकी महिंद्रा स्कॉर्पियो निकली है। अब एक मैंने जो ऑनलाइन शॉपिंग अपने प्राइवेट फोन पे 4 मिनट पहले करी, और मेरा ये छोटा सा डेटा जो आपके लिए बड़ा मामूली सा डेटा है, रक्षित टंडन, लाल शर्ट, पोलो की, और मेरे बैंक डिटेल नहीं, सिर्फ इतना पता है कि हाँ ICICI से पैसा दिया है, तो वो जो लेमैन कंज्यूमर है वो फौरन उस झांसे में आ जाता है। अभी एक और केस कोविड के दौरान बहुत बड़े हैं लोगों के, जो डेटा ब्रीचेस का नतीजा है कि आप पे एक मेल आएगी, डियर रक्षित टंडन, मुझे आपका पासवर्ड पता है, ये रहा आपका पासवर्ड। इस दौरान आपने जो भी कार्यक्रम किए सब मैं रिकॉर्ड कर चुका हूं, मैं आपका वेबकैम हैक कर चुका था, मेरे को सब पता है आपके बारे में। अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो इतने बिटकॉइंस मुझे ट्रांसफर करें, वरना आपकी सारी निजी जानकारी, प्राइवेट जो मैंने इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम से निकाली है, मैं पब्लिक कर दूंगा। अब एक लेमैन फौरन डर जाएगा, इसे ईमेल एक्सटॉर्शन स्कैम कहते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि मेरा डेटा ब्रीच हुआ था। 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि हम एक नई साइबर सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी 2020 की ला रहे हैं, क्योंकि डेटा नया गोल्ड है। डेटा इज द न्यू गोल्ड इन दिस न्यू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो अब हम देखने जा रहे हैं 4.0। डेटा इज गोइंग टू बी द न्यू गोल्ड। और जैसा अभी विनीत जी ने कहा कि ड्यूरिंग कोविड-19 एवरीथिंग हैज गॉन ऑनलाइन, तो हमारा सारा तो डेटा ही सब कुछ है। तो जो ये लेमैन सोचता है कि अरे मेरे डेटा से वो क्या कर लेगा, वो ये कर लेगा कि जब वो आपको कॉल करेगा ये बता के कि आपने ये फलानी पॉलिसी खरीदी थी, इतने रुपए की खरीदी थी, इतना प्रीमियम दिया था, उसका बोनस निकला है, बोनस क्लेम करने के लिए छोटा सा फॉर्म भर दीजिए आप। और आपने जैसे ही वो फॉर्म भरा, पता चला आपका खाता खाली हो गया। तो डेटा ब्रीच के जो इफेक्ट्स हैं वो साइबर क्रिमिनल्स जो हैं वो काफी इस्तेमाल करते हैं।
Correct. So जो भी सुन रहे हैं हमारे viewers, please be aware. Please be very, very careful with the data that you share with the websites and platforms that you're getting on. My next question would be to Astha. Why don't you tell us why individuals are unable to protect themselves against privacy harms of unconsented data brokerage, जैसा कि रक्षित जी अभी और विनीत जी भी समझा रहे थे. How are they unable to protect themselves? So there are two things that are happening simultaneously. जैसे रक्षित जी और विनीत जी ने कहा that the individual is becoming, the center of a lot of activity. आपको ads आ रहे हैं, आप कोई website पे गए and then those ads follow you. So there's a commodification of your activities online. आपने कुछ भी like किया, आपने कुछ भी purchase किया, all of that gets commodified. So individual movements and all of that have become very, very integral. जैसे रक्षित जी ने कहा data is the new gold. कुछ लोग कहते हैं oil है, कुछ लोग कहते हैं sunlight है, जो भी है, but it is critical to our existence right now. So that's one part of the story. The other part of the story is that the individual itself, right, is burdened by this idea of consent. Consent क्या है? आपने yes no check कर दिया, then the platform is like कि ठीक है इन लोग ने consent दे दी, but within that there is a gamut of issues, right? What have you consented to is a big question. So anybody who has used a website, उसमें वो cookie policy pop up कर जाती है, but how many of us actually go through and read? If you read the cookie policy, उसमें कई एक होता है third party access करके. In that third party access, you have a plethora of these brokers who are accessing your data. आप कोई भी website में जाइए, चाहे आप Times of India के में जाइए या आप Myntra में जाइए, there are always cookies, and in that there is a sense of who the third parties are. Now these third parties are the data brokers. So the term of unconsented needs to be packed कि एक तरफ तो आपने checkbox कर दिया yes no का, और दूसरी तरफ है you are not in a position to read all of this material, you're not in a position to process. I work on this issue, so I always make it a point to go through all of this. But for everybody else who are both looking for quick services, who are looking for simple services, it's very, very complex. So in a certain way, it is unconsented because consent to sirf naam ki hi hui. And also what is happening is that there's a burden of time, there's a burden of convenience, and what's also interesting is that individuals as a whole, jaise Rakshit ji ne kaha, think that my data is not useful and data of only collectives is useful, but ऐसा नहीं है. All of these are moving parts. आपकी एक profile बनाई जाती है, right? For instance, me living in an urban city of a certain age, of a certain income value, and then the products that get targeted to me are structured to me, and that's deeply problematic. और ये सब हमने देखा है, इसके very deep issues also that come up, जैसे Cambridge Analytica वाला scandal था, उसमें the way people were voting was also overridden by platforms, right? That's very, very scary, particularly for a country like ours, which is quite young, which is quite digital, but at the same time, there are parts of the community that are not as digitally savvy. So while we all use phones, we don't necessarily know how to negotiate with this space. And in that context, this unconsented data brokerage and protecting ourselves becomes very, very hard, which is why it's critical that hame aaj hi we need a data protection framework. India mein, there are so many mobile phones. We are some of the most digitally active people in the world. Our data is some of the cheapest in this country, but hamara data protection bill nahi hai, and that obviously makes us very vulnerable. And that is why it's critical for people like us, you, me, all of us, to think of ways to protect ourselves, right? So obviously all the tips and tricks that Vineet ji and Rakshit ji have given already, but simple cheezein hain. Incognito mein browse kijiye. That's the simplest thing. हम लोग सब Google इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक incognito का option है. Let's use that. But उसका flip side है कि हमारी history नहीं मिलती हमें, जो हमने उस time check किया था और भूल गए, वो नहीं है. So we also have to think about the ways in which we can shift our behaviors. There are all these platforms offer you now the opportunity to say, I don't want personalized ads. But वो एक effort है that we have to make, and in that effort I think we all lose a bit of our privacy. Yeah, I think the first step towards making any kind of change is to sort of create an awareness, which we are trying to do. And today we spoke about a very different kind of
harassment per se, which everyone's facing online, which is privacy and data collection and just protecting yourself and your private business from being given to platforms and websites that we use every day. The internet has become a very, very big part of our lives, and I think the more steps we take to protect ourselves, the better it will be for all of us. And that's why we have experts like you on our panel today. And thank you so much for your wonderful insights. And the information that you've given today is very, very precious, and I'm sure that people will kind of sit up and take notice after what they've heard, because it has hit me in a very, very it made quite an impact on me, because we only know so much of what we are doing online, but there is so much more to it. So thank you all for showing us the way and shining some light on it. Astha, Rakshit ji and Vineet ji, thank you so much for being here today. I think this episode is really, really going to help create a lot of awareness.